अच्छा, जस्ट अ क्विक रीकैप ऑफ व्हाट वी डिड इन आवर प्रीवियस लेसन। हमने इंडिसेस के सारे रूल्स हमने पढ़ लिए, ठीक है। अभी इंडिसेस के ये आप ये देखें, ये रूल्स क्या है, एक दफे सारे रीकैप कर लेते हैं। द फर्स्ट रूल वाज इफ यू हैव टू नंबर्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। अच्छा, इफ यू हैव टू नंबर्स who have the same base, like ये कोई भी एक ही जैसे नंबर होंगे ये दोनों। Having said that the two numbers are being multiplied, तो फिर उनकी जो पावर्स हैं वो आपस में ऐड हो गए। Powers, what will happen to the powers? Add 2 raised to the power 4 times 2 raised to the power 5. As you can see that the bases are same, the two numbers are being multiplied. You will keep the base as it is. You will simply add up the two powers. 4 plus 5 equals to 9. यहाँ तक क्लियर है? Okay, a raised to the power m divided by a raised to the power n. Now this is the rule for division. The previous one was for multiplication. ये multiplication का rule था, ये division का है। Division में अगर आपके पास bases same होंगी तो powers को subtract कर लेंगे, ठीक है। Multiplication में क्या कर रहे हैं, powers को add कर रहे हैं। Division में क्या करेंगे, subtract करेंगे। In multiplication we add the powers, in division we subtract the powers. Okay, so these were the first two rules. Third or fourth rule is about if the two numbers are being multiplied, यहाँ पे ऊपर फर्स्ट टू रूल्स में आप देखें बेसिस सेम थी, यहाँ पे बेसिस डिफरेंट है। टू डिफरेंट नंबर्स हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनकी पावर सेम है, होल पावर उनकी सेम है। Then the rule says that you can split the powers between the two numbers, a raised to the power m and b raised to the power m. You can split the power between the two numbers. Okay, same goes for division. तो multiplication division का ये एक जैसा रूल है that you can split the power. ये आगे कुछ misconception मैंने आपको बताई थी। This rule about splitting the powers is only valid for multiplication and division. We cannot apply the very same rule for addition and subtraction. Addition subtraction में हम ये rule apply नहीं कर सकते। We cannot do a raised to the power m plus b raised to the power m separately. Same goes for subtraction. उसका proof मैंने आपको ये दिया था। You must be aware of a plus b whole square. A plus b whole square is an algebraic identity and it is equals to a squared plus 2ab plus b square. It is not equal to a square plus b. ठीक है, अगर आप ये वाला रूल एडिशन पे लगा के a square plus b square का देते हैं तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। a plus b whole square किसके इक्वल होता है, आपको पता है, इसके इक्वल नहीं है, वो a square plus 2ab plus b square के इक्वल। a raised to the power m and then the whole power of n. There is the number, it has a power, and then this whole number with the power has a whole power. Then what happens to the two powers? They will be multiplied with each other. ठीक है, इसकी एग्जांपल जो मैंने कोट की थी, let me re-quote it. 2 raised to the power 3 whole raised to the power of 2. ये किसके इक्वल होगा according to the rule? नीचे करके लिख देते हैं। 2 raised to the power 3 and then whole raised to the power of 2 किसके इक्वल हो जाएगा ये? 2 raised to the power of 6. Okay, उसके बाद हमने ये रूल पढ़ा था, any number having a power of 0 is always equals to 1. फिर एक और रूल पढ़ा था, any number having a power of 1 is the very same number as it is. फिर उसके बाद हम सर्ड्स पे आ गए थे कि अगर आपके पास फ्रैक्शनल इंडेक्स है, इंडेक्स बोलते हैं पावर को, ठीक है। अगर आपके पास फ्रैक्शनल पावर है in such a way that the numerator is 1, numerator is 1, numerator का 1 होना इसमें must है। So whenever that is the case, जो भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर होगा वो रूट बन जाएगा। So if इस केस में ये nth रूट ऑफ a बन गया। यहाँ पे अब a raised to the power 1/2 है तो ये क्या बन गया, स्क्वायर रूट ऑफ a। a raised to the power 1/3 डिनोमिनेटर में क्या है बेटा, तो ये क्या बन गया, क्यूब रूट ऑफ a, ठीक है। 1/4 अगर है
तो डिनोमिनेटर में क्या है, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, फोर्थ रूट ऑफ ए। ओके। अच्छा, फिर हमने देखा कि अगर फ्रैक्शन ऐसी है कि जिसका डिनोमिनेटर सॉरी न्यूमरेटर 1 नहीं है, इन दिस केस दिस रूल इज एप्लीकेबल, जिसमें आप रूट बना देते हैं डिनोमिनेटर को, दैट इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 1। पावर जो फ्रैक्शनल पावर होगी उसका न्यूमरेटर 1 होगा, ओनली देन दिस रूल इज एप्लीकेबल। बट व्हाट इफ यू हैव अ पावर, फ्रैक्शनल पावर जिसका न्यूमरेटर 1 नहीं है, फिर आप क्या करेंगे, वी स्प्लिट द पावर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर देंगे। हाउ कैन वी स्प्लिट दैट, over here 2 over 3, for example the power is 2 over 3, so I can write 2 over 3 as 2 multiplied by 1 by 3, which will eventually result in the very same thing, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो ये अब बन गया आपके पास वो पावर जिसका न्यूमरेटर क्या है 1, तो ये डिनोमिनेटर क्या है इसका, तो ये क्या बन जाएगा, क्यूब। शाबाश। सो ये रूल एक्सप्लेन किया हुआ है, m मल्टीप्लाई बाय 1 बाय n, इसका डिनोमिनेटर n है, तो ये बन गया nth रूट ऑफ a पावर m। ओके, there are two ways to write this, one is this nth root of a power m, another way to write this is you can put this power as a whole power, instead of writing it inside you can put it as a whole power of nth root of a, ये is another way of writing this down। This rule, whenever you have a negative index, नेगेटिव इंडेक्स जब भी होगा उसको पॉजिटिव करने के लिए उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। ठीक है, इफ इट इज इन द न्यूमरेटर तो उसको किधर ले जाएंगे हम, डिनोमिनेटर में, एंड इफ इट इज इन द डिनोमिनेटर तो उसको किधर ले जाएंगे हम, पावर का रेसिप्रोकल ले लेंगे, उस नंबर का रेसिप्रोकल ले लेंगे जिसकी पावर नेगेटिव है। कि हमने एक एग्जांपल की थी, 2 raised to the power of -3 multiply by 4 raised to the power of 2 and then whole divided by 3 raised to the power of +4 and then 6 raised to the power of -1. The question was to rewrite this in an index form, index form में लिखना है in such a way कि आपके पास सारी पॉजिटिव इंडेक्सेस, ठीक है, पॉजिटिव इंडेक्सेस। सो दिस इज अ नेगेटिव पावर, तो इस नंबर का रेसिप्रोकल ले लें, इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 raised to the power of +3, ये देखें डिनोमिनेटर में आके +3, ओके। 6 raised to the power of -1, दिस इज द डिनोमिनेटर, इसको जब न्यूमरेटर में, ये नीचे डिनोमिनेटर में नेगेटिव है तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे पूरे का, फैक्ट पावर का रेसिप्रोकल नहीं लेना, आपने याद रखें नंबर का रेसिप्रोकल लेना। सो व्हेन दिस गोज अप तो ये क्या हो जाएगा, 6 raised to the power of +1, तो +1 लिखने की जरूरत नहीं है। गॉट इट, यहां तक क्लियर है। देन आई गिव यू दीज क्वेश्चंस, इनको ये मैंने इंडेक्स फॉर्म में लिखा हुआ था, एंड आई आस्क यू टू राइट दीस डाउन इन सर्ड फॉर्म। ये जो रूट फॉर्म होती है इसको सर्ड फॉर्म बोलते हैं। So 2 raised to the power of 1 by 2 can be written as square root of 2 because the denominator of the power is 2. ये जो क्वेश्चन था 3 raised to the power of 3 by 2, इसमें डिनोमिनेटर क्या है बेटा 2, तो ये बन गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 cube. Another way of writing this down is square root of 3 and then whole cube. Okay? अच्छा, 3 raised to the power of -1 by 3, इसको सर्ड फॉर्म में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू चेंज द साइन ऑफ दिस इंडेक्स। साइन कब चेंज होता है, जब इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। सो ये न्यूमरेटर में अभी इसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 raised to the power of +1 by 3, डिनोमिनेटर में आके इसकी जो नेगेटिव पावर थी जो कि -1 by 3 थी, डिनोमिनेटर में आके क्या होगी +1 by 3। फिर जाके अब इसको देखेंगे, इसका डिनोमिनेटर क्या है फ्रैक्शन का 3, तो दिस इज क्यूब रूट ऑफ 3। क्लियर, सो दीज आर द रूल्स। अभी हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ओके। इंडिसेस के क्वेश्चंस कहाँ पे हैं, मेरे सर्च में होंगे।
नहीं। चलें, अभी वी हैवंट स्टडीड इनफ कॉन्सेप्ट कि हम वर्कशीट पे जाए। ठीक हो गया? ये रूल्स जो है ये आपको याद करना। मैं व्हाट्सएप ग्रुप डिजाइन कर दूंगा आप सबके लिए, गूगल क्लासरूम में ये सारी वर्कशीट्स को मैं डाला करूंगा। ठीक है, तो गूगल क्लासरूम का क्या बना था, बन गई? चलो बेटा, आज सबने जाने से पहले ना सर को अपने जीमेल आईडीज लिखवा के जाते हैं। आप सबको गूगल क्लासरूम पे इनविटेशन आ जाएगा। ओके ओके, नाउ अब हम कुछ सर्च के फर्दर रूल पढ़ते हैं। सर्च के कुछ फर्दर रूल्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले रूट ऑफ 49 क्या होगा? वेरी गुड, रूट ऑफ 49 इज 7. Why is that so? Because 49 is a square number. 49 is a, आप मुझे बताइए, इस वैसे एक क्वेश्चन है, ये तो हमें याद है कि रूट ऑफ 49 है, उसका आंसर 7 है। अभी जो हमने इंडिसेस के कुछ रूल्स पढ़े हैं, कैन यू जस्टिफाई विद दैट, प्रूफ इट? इफ आई आस्क यू टू प्रूव दैट रूट ऑफ 49 इज 7, ट्राई करें, ट्राई करें, पेपर पे ट्राई करें, शाबाश। हिंट दे देता हूँ, ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, इंडेक्स फॉर्म में या सर्ड फॉर्म में? सर्ड फॉर्म। इसको आप इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, हाँ, क्या हाल है? 49 को इंडेक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 49 को, शाबाश, 49 को कैसे इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे? और ये जो रूट है इसको कैसे इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे? इसकी इंडेक्स फॉर्म क्या होगी? 1/2। अब वो रूल याद करें, एक नंबर है, उसकी पावर है और फिर उसकी होल पावर है, तो व्हाट हैपेंस टू दीज टू पावर्स? व्हाट डू वी डू विद दीज टू पावर? वी मल्टीप्लाई देम। 7 raised to the power of 2 multiplied by 1/2 कैंसिल हो गया। व्हाट आर वी लेफ्ट विद? 7 raised to the power 1 which is equals to 7। ठीक हो गया? अच्छा, रूट ऑफ 49 तो आप सबको पता है कि 7 के इक्वल होता है, बिकॉज 49 वाज अ स्क्वायर नंबर। 49 वाज अ स्क्वायर नंबर। 49 से अगला स्क्वायर नंबर क्या होगा? 64। ठीक है, ठीक है। 49 से पिछला स्क्वायर नंबर क्या होगा? 6। 49 से प्रीवियस वन, द स्क्वायर नंबर बिफोर द 49। 36। 36। 49 किसका स्क्वायर है बेटा? 7 से पिछला नंबर क्या है? तो 6 का स्क्वायर क्या होगा? तो 36 इज द प्रीवियस स्क्वायर नंबर बिफोर 49। ओके, अच्छा जी, what if I give you a number 48 and if I ask you to simplify this one? Is 48 a square number? No. Then how would you solve this? Estimate. No. अच्छा, बजाय इसके इसको इंडेक्स फॉर्म में करने के, अभी जो मैंने आपको प्रूफ बोला था प्रूव करें, बजाय इसके इसको इंडेक्स फॉर्म में करने के, याद रखें स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाते हैं। उसकी रीजन अभी हमने प्रूफ में देख लिया, क्योंकि स्क्वायर रूट का क्या मतलब है, क्या पावर है? 1/2। So 1/2 will be definitely cancelled out with 2। ठीक है क्या?
तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा। क्यूब रूट किससे कैंसिल होगा? क्यूब से। फोर्थ रूट किससे कैंसिल होगा? पावर 4 से। ठीक हो गया? अच्छा, 48 को जब एग्जामिनर आपको कह रहा है सिंप्लीफाई करें, रूट को एज इट इज रहने दें, 48 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें। ऐसे, जिनको नहीं पता प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है, ऐसे करके पेपर पे करें बच्चे, पेपर पे, शाबाश। 48 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करें। आपने क्या लिखा है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो जाएगा? 2। हाँ जी, क्या आंसर आ रहा है? 48 की प्राइम पावर 4 फैक्टराइजेशन into 3. नहीं, 48 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ रही है? इंडेक्स फॉर्म में बताएं। 2 क्यूब इंटू 2 रेज टू द पावर ऑफ 4। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, इन टू कोई टर्म नहीं होती, या टाइम्स बोला करें या मल्टीप्लाई करें। ओके, अक्सर मैं भी इनटू स्टूडेंट्स की वजह से मैं भी बोल देता हूँ, ये गलत है। ठीक है, इधर इट इज टाइम्स 3 और मल्टीप्लाई बाय 3, एक और टर्म भी होती है, इसको बोलेंगे 2 टाइम्स 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, या फिर बोलेंगे 2 लॉट्स ऑफ 3, 2 2 लॉट्स ऑफ 3, 2 लॉट्स ऑफ 3, 3 3 के 2 हैं, तो 3 3 के 2 कितने हो जाएंगे? चलो, 2 लॉट्स ऑफ 4, यानी 4 4 के 2। ठीक हो गया? ओके, 48 की प्राइम फैक्टराइजेशन आ रही है 2 रेज टू द पावर ऑफ 4 टाइम्स 3। अच्छा, यानी कि अगर हम इसको स्क्वायर के ग्रुप्स में लिखें, कैन आई राइट 48 एज 2 स्क्वायर्ड टाइम्स 2 स्क्वायर्ड times 3? Can I write it like this? Now what happened to the square over here? Up here, what happened to the square when it was inside the square root? It cancelled out. The root vanished from them. Okay, root and the square vanished. So इधर कट नहीं कर सकते क्योंकि सारे सारे नहीं कट हो रहे। बस आप ये याद रखें, ये जो 2 है इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा और ये रूट से बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। What about this one? Same thing will happen to this one. What about this one? No, it will stay inside. So this is going to be 2 times 2 times root of 3. क्या आंसर आ गया बेटा आपका? 4 root of 3. This is not 4th root of 3. ये है 4 multiply by root of 3. 4th root अगर होता है तो ये 4 छोटा सा लिखा होता है इसके साथ ऐसे। This is not 4th root of 3. This is 4 multiply by root of 3. Got it? रूट के अंदर जब भी स्क्वायर होगा वो रूट से बाहर आ जाएगा बगैर स्क्वायर। ठीक हो गया? इसका स्क्वायर था, ये इसने बाहर आना है, तो ही नीड्स टू ट्रेड ऑफ अ पावर ऑफ 2। ठीक हो गया? आप यूं समझें, ये गेट है, इस गेट से बाहर पार्क है, जिसके पास 2 रुपए हैं वो दे और बाहर चला जाए या पार्क के अंदर आ जाए। ठीक हो गया? इसके पास 2 रुपए थे, इसने दिए और ये पार्क के अंदर आ गया। इसके पास भी 2 रुपए थे, ये 2 रुपए थे इसके पास, इसने दिए, ये बाहर आ गया। इसके पास नहीं थे, ये पार्क के अंदर एंटर नहीं हो सकता। ठीक है? अच्छी मिसाल थी? नहीं मिसाल थी अच्छी? थोड़ी सी इवल मिसाल दे देते हैं। एक दफा एक बंदे ने जू बनाया, उसके जू में कोई भी नहीं आया, तो उसने टिकट रखा हुआ था 500।
कोई आ ही नहीं रहा था, तो उसने 500 टिकट रखा हुआ था, 500 रुपीज टिकट है, आए चिड़ियाघर में, आए जानवर देखेंगे, मैंने रखे, कोई भी नहीं जा रहा। उसने कहा फ्री है, बहुत सारे लोग आ रहे। जब लोग अंदर एंटर हो रहे, उसने पीछे से दरवाजा बंद कर दिया, एग्जिट पे टिकट लगा दिया कि भाई, और शेयर खोल दिया, जिसने बाहर आना है 500 रुपया दे। तो अब सर, तो इधर वे पार्क से बाहर जाना है या पार्क के अंदर जाना है, डिपेंडिंग ऑन योर नेचर। इवल नेचर है तो पार्क से बाहर, जू से बाहर, ठीक है। गॉट इट? क्यूब रूट ऑफ एक सेकंड है, 54, क्यूब रूट ऑफ 54, क्यूब रूट। तो अब आप करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, जैसे ये 48 की प्राइम फैक्टराइजेशन की थी, क्या आंसर आया था, 2 raised to the power 4 टाइम्स 3। इसी तरीके से अब आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी 54 की। पिछली एग्जाम्पल में और इस एग्जाम्पल में क्या फर्क है, ये था स्क्वायर रूट, जब स्क्वायर रूट था तो हर नंबर के पास 2 रुपए होने चाहिए थे, यहाँ हर नंबर के पास कितने रुपए होने चाहिए बाहर आने के लिए, 3 रुपए होने चाहिए, पावर 3 फॉर्म में लिखना है। चले शाबाश, प्राइम फैक्टराइजेशन करें, जिसके पास 3 रुपए है वो चिड़ियाघर से बाहर आ गया। फिफ्टी फोर की प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई जनाब, क्या नाम है आपका? नाम? हनान, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा, 54 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बताइए, फिर इनटू 2 lots ऑफ जस्ट 3, 3 क्यूब, 2 lots ऑफ 3 क्यूब, राइट। तो यही आ रहा है सबका, ठीक है। तो 54 का क्यूब रूट हो जाएगा 2 lots ऑफ 3 क्यूब। यहां से बाहर क्या आएगा, उस्मान, उस्मान बताएंगे आप, उस्मान फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? से फाइनल आंसर आएगा 3 क्यूब। 3 × क्यूब रूट ऑफ 2। ये 3 क्यूब था, ये बाहर आ गया विदाउट द पावर ऑफ 3, फिर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 बाहर नहीं आ सकता, तो ये आ गया आपके पास आंसर, ठीक है। पैसे देगा तो बाहर आएगा, पैसे नहीं देंगे तो बाहर नहीं आएगा, ठीक है। देखो बेटे, थोड़े मैं इसका ना बिहाइंड द सीन्स बताते हैं आपको, ठीक है। इधर आपको मूवी के बिहाइंड द सीन्स दिखाते हैं, ब्लूपर्स दिखाते हैं आपको। क्यूब रूट का क्या मतलब है, क्या पावर है इसको, क्यूब रूट को इंडेक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इंडेक्स फॉर्म, ये याद, दिस इज इंडेक्स फॉर्म, दिस इज थर्ड फॉर्म। जब पावर 1/2 था तो उसको स्क्वायर रूट लिखा, अब इस केस में थर्ड फॉर्म से इंडेक्स फॉर्म में जाना है। अब पावर है क्यूब रूट, इसको इंडेक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 54 की पावर 2/3 किधर से आ रहा है, 1/3, फ्रैक्शन के ऊपर 1 होता है, ठीक है। देखे ना बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर इज इक्वल टू a raised to the power of 1 by स्क्वायर रूट 1 by स्क्वायर रूट में 3 होगा। अच्छा, फोर्थ रूट ऑफ a इज इक्वल टू a की पावर 1/4, ठीक है। तो अब जब ये क्यूब रूट ऑफ 54 है, तो अब बिहाइंड द सीन्स पे आ जाए, ये हो जाएगा 54 की पावर 1/3,
54 की आपने प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गई 2 टाइम्स 3 क्यूब होल पावर 1/3। मल्टीप्लीकेशन सेम पावर, कौन सा रूल है? मल्टीप्लीकेशन है दो नंबर्स की और पावर सेम है होल पावर, कौन सा रूल था? कौन सा मतलब रूल क्या था? वी स्प्लिट द पावर्स बिटवीन द टू, पावर स्प्लिट कर लें। 2 पावर 1/3, 3 की पावर 3 पहले से है, 1/3 साथ आ गई मल्टीप्लाई, कैंसिल हो गया, ये कटेगा किसी से, ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया 2 पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हो गया 2 पावर 1/3 को वापस इन थर्ड फॉर्म में ले जाए, क्यूब रूट ऑफ 2 टाइम्स 3, इसको पहले लिखें बाद में लिखें एक ही बात है, ठीक है। तो ये प्रोसेस बेहतर है या ये बेहतर है? ये ठीक है, पैसे दो जान छुड़ाओ, ठीक है, ओके राइट। अब जरा एक क्वेश्चन करें। 54 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 28 का 28 का स्क्वायर रूट, ट्राई करें जरा इस क्वेश्चन। पहले दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे सेपरेटली, ठीक है, पहले दोनों को सेपरेटली सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे क्या हो सकता है। 28 की इंडेक्स फॉर्म में स्क्वायर के ग्रुप्स बन जाएंगे, यस। बेटा स्क्वायर रूट है, दोनों स्क्वायर रूट है, ठीक है। आमिर हसन मोहम्मद, बेटा आपका क्या नाम था? आमिर हनान, सॉरी आमिर हनान मोहम्मद अमान, आर विद आर राइट, अमार। बेटी आपका क्या नाम है? जैनब मारिया। हसन भाई आई एम सॉरी, अब नहीं भूलेगा। क्या हुआ? फिफ्टी फोर की सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या आ रही है? फिर इनटू 2 लॉट्स ऑफ फिर सेंड कर दिया। 2 लॉट्स ऑफ 3 क्यूब। हाँ जी, इनमें से बाहर कौन सा आएगा? 3 बाहर आ जाएगा, 3 2 रुपए दे के बाहर आ रहा है, पीछे कितने रुपए बचेंगे इसको? तो वो जो 1 रुपए के साथ है वो अंदर ही रहेगा, ठीक है। तो ये बाहर आ गया आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। तो बेसिकली इधर से 3 स्क्वायर बाहर आ गया विदाउट द पावर, पीछे एक 3 की पावर 1 बच गई, तो ये क्या हो गया आपके पास 3 रूट ऑफ 6। अच्छा जी, स्क्वायर रूट 28 पे आ जाए। स्क्वायर रूट 28 की प्राइम फैक्टर, 28 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुई थी बेटा? 2 स्क्वायर टाइम्स 7,
तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स रूट ऑफ, कौन कैसे है? ये आप क्या पूछ रहे हैं? देखो बेटा, इसके पास कितने रुपए हैं, कितने रुपए दे के बाहर जाना है? ये स्क्वायर रूट है, 2 रुपए दे के बाहर एक ये आ गया बगैर पैसों के, तो पीछे अंदर 3 पावर्स थी ना, एक रह जाएगी, तो वो ये 3 पावर 1 अंदर ही है। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, रूट वाले रूट से मल्टीप्लाई होंगे, बगैर रूट वाले बगैर रूट से मल्टीप्लाई होंगे। 3 2 जार 6 और 6 7 जार 42। So final answer is 6 root of 42। याद रखें, रूट वाले रूट से मल्टीप्लाई होंगे और विदाउट रूट से मल्टीप्लाई होंगे। एक क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 4, इसका आंसर क्या होगा? ये चले क्यूब रूट ऑफ 2, इसका आंसर क्या होगा? दोनों प्राइम नंबर है, इनकी फर्दर प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, ना 3 की ना 2 की, डायरेक्ट बताइए यहीं से। एक स्क्वायर रूट ऑफ तो 3 है, 6। दूसरा नहीं। जब मैंने इधर बोला रूट वाले रूट से मल्टीप्लाई होंगे, उसका मतलब क्या था एक्चुअली? इस सेम पावर्स वाले हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसकी पावर क्या है? 1, इसकी पावर क्या है? 1, इनको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। इसकी पावर क्या है एक्चुअली में? इसकी पावर क्या है? 6, 6 की पावर क्या है? 1/2। 7 की पावर क्या है? 1/2। दैट इज व्हाई आई वाज एबल टू मल्टीप्लाई दैट। सेम पावर्स वाले मल्टीप्लाई होंगे। इसकी पावर क्या है और इसकी पावर क्या है? सो आई कैन नॉट मल्टीप्लाई दैट। तो ये यही रहेगा, एज इट इज रहेगा, इसको मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता।